Brothers and sisters, as we are speaking on the new covenant life, भाइयों बहनों, जैसे हम बात कर रहे हैं नए वाचा के जीवन के ऊपर, today will be the part 3 of it. आज उसका तीसरा भाग होगा. The title is Transformation from Glory to Glory. उसका शीर्षक ये है कि महिमा से महिमा की ओर बदलते जाना. As we heard that the first part was the law of God written upon our hearts. जैसे कि हमने सुना, उसका पहला भाग ये था कि परमेश्वर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे हृदय में लिखा हुआ है. And the second part was that we are not adequate. Our adequacy is from God. और दूसरा भाग उसका ये था कि हम उसके योग्य नहीं है, परंतु हमारी योग्यता जो है परमेश्वर की ओर से आती है. Brothers and sisters, we have been speaking so much of the new covenant here. How many of you know where the new covenant is? और आप में से कितने लोगों को पता है कि नई वाचा कहाँ पे है? I trust most of you will know the reference now. It's Hebrews chapter 8 verses 10 to 12. तो मैं विश्वास करता हूँ अधिकतर लोगों को यहाँ पे वचन पता होगा. वो है इब्रानियों की 8वां अध्याय के 11 से लेके 12. If we read this and if we get a knowledge of it and a revelation of it, it is definitely going to change our life. अगर हम उसे पढ़ेंगे और उसके ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसका प्रकटीकरण हमें मिलेगा तो ज़रूर हमारे जीवन को वो बदल देगा. The Christian life becomes so interesting and wonderful when we really know the new covenant. और एक मसीही जीवन जो है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अद्भुत हो जाएगा जब हम इस नए वाचा को जानेंगे. And brothers and sisters, God will speak to you and God will bless you. और भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. As Vijay said, there should be a thirst and hunger for God. जैसे भाई विजय ने कहा कि परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास होनी चाहिए. The thirst and hunger for God is very essential till the end of our life. और एक प्यास और भूख परमेश्वर की प्रति जो है वो बहुत ही ज़रूरी बात है हमारे जीवन के अंतिम दिन तक. And if our life is surrendered to God, और हमारा जीवन अगर परमेश्वर की ओर पूरी तरह समर्पित किया गया हो, that is, what is the meaning of surrender? That is, Jesus is first in our life. समर्पित करने का अर्थ क्या होता है? ये कि यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे प्रथम है. That only we know whether Jesus is first. और सिर्फ हम ही ये जानते हैं कि क्या यीशु हमारे जीवन में प्रथम है. Then this new covenant word will become very attractive to you. फिर ये नई वाचा का जो शब्द है आपके लिए बहुत ही आकर्षक बन जाता है. If the hunger and thirst is not there and if Jesus is not first, this may not seem very good to you. अगर आपके अंदर एक भूख और प्यास नहीं है, यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम नहीं है, तो आपको हो सकता है कि ये इतना दिलचस्प ना लगे. So let us read Hebrews chapter 8 verses 10 to 12. हम पढ़ेंगे इब्रानियों की 8वें अध्याय के 10 से लेके 12. It says, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more." फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे. और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा. So today we are looking at this 11th verse. तो आज हम 11वें वचन की ओर देख रहे हैं. That all shall know me from the least to the greatest of them. कि हर एक जन मुझे जानेंगे, छोटे से लेके बड़े तक. Okay? So such a wonderful thing that every one of us, from the smallest to the greatest of us here, can know our living God. ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम में से यहाँ हर एक जो छोटे से लेकर बड़े तक है, सभी लोग हमारे जीवित परमेश्वर को जान सकते हैं. What is the meaning of knowing God? परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या होता It है? is just like we get to know one another. ये वैसा ही है जैसे कि हम एक दूसरे को जान पाते हैं. Say, I came to know about Ashish.
जैसे कि मुझे आशीष के बारे में पता चला, On the first day, I say I saw him, मान लीजिए कि पहला दिन मैंने उसको देखा and I shook hands with him. और मैंने उससे हाथ मिलाई, I came to know little about him. उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता चला। Before that, I must have heard about Ashish, उससे पहले मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था, but today, say that particular day, I met him. पर उस दिन कहो कि उस दिन मैं उससे मिला। So similarly, we meet Jesus when we are born again. वैसे ही जैसा ही हमारा नया जन्म हो जाता है, हम प्रभु यीशु से मिलते हैं। But now, for Ashish, if I don't talk to him, or I don't be with him, or I will not know much about him. अगर मैं आशीष के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, उसके साथ ज़्यादा मिलूँगा नहीं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाऊँगा। So same way, when we just have met Jesus and then we just don't spend time with him or don't do what he says and so on, we don't get to know him properly. वैसे ही जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर हम उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, उनको और ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम उसे अच्छे से जान नहीं पाएंगे। So when we meet our Heavenly Father being born again, then we spend time with him and when we get to know him. और जब हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताते हैं और उसके बारे में उसके साथ बिताते हैं पल को, तो परमेश्वर के पिता के बारे में ज़्यादा जानते हैं हम। So when we get to know him, what will happen is we will also become like him. जब उनको हम ज़्यादा जानने लगेंगे, तब क्या होगा कि हम उनके समान बनते जाएंगे। Yeah, if we meet a person who is a very nice person with a lot of this thing, when we spend time with him, some of his qualities will come to us. देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई अच्छे व्यक्ति से हम मिलते हैं और उसके साथ हम ज़्यादा समय को जब बिताते हैं, तब उनका जो अच्छे गुण है वो हो सकता है कि हमारे अंदर भी आ जाए। So in this new covenant, we will know God and get to know him and his life will become ours. इस नई वाचा में हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को जानने का अवसर और हमें मिलता है और उसका जीवन हमारा बन जाता है। So after becoming a Christian, if we are not becoming like Christ, then our Christian life is not very useful. मसीही होने के बाद अगर हम यीशु मसीह के समान बन नहीं रहे हैं, तो हमारा मसीही जीवन जो है लाभदायक नहीं होगा। How many of us here want to become like Jesus? There's a strong desire in us that we must become like Christ. यहाँ पे से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मन में इतनी बड़ी लालसा हो कि वो प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं? That should start from the time when we are born again. उसकी शुरुआत हमारा नया जन्म जब हुआ तब से ही होना चाहिए। But is it a really serious desire within us? क्या आपके अंदर सच में ये गंभीरता का एक लालसा है? I know it is a strong desire in my life. मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में इसकी इच्छा बहुत है। So we all can become like Jesus. तो हम सभी जो है यीशु के समान बन सकते हैं। And this is our calling. What is the calling of every Christian? और हर एक मसीही का बुलावट क्या है? Many times when we ask what is the goal of the Christian life, कई बार जब हम ये प्रश्न करते हैं कि एक मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है, people think they must win souls for Christ. लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारे लोगों को मसीह के लिए जीतना है। That is one of the work that we have. तो वो एक काम है जो हमारा है। But the Bible says listen to these verses and note it down, please. It will bless you. ये जो वचन आप सुनिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये वचन आपको आशीष करेगा। 2 Thessalonians 2:14. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। It says about our calling. वहाँ पे हमारे बुलावट के विषय में लिखा गया है। And it was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of the Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। So our calling is that we may gain the glory of Jesus Christ. हमारी बुलाहट ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है उसे प्राप्त करें। And in 2 Corinthians 4:4 it says, और दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 4 वचन में लिखा है, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में इस समाचार का प्रकाश उस पर ना चमके।
So, brothers and sisters, when you think of the gain the glory of Christ, what comes to your mind? तो भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचते हैं, बनने के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? Many times we feel it must be some great light or some our faces will be shining or something that way. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा एक प्रकाश होगा, या तो फिर हमारा जो चेहरा है वो चमकेगा. But the glory of Christ is mentioned in John chapter 1 verse 14. पर परमेश्वर की महिमा के विषय में लिखा हुआ है यूहन्ना का किताब पहला अध्याय उसके 4वें वचन में. It says, John chapter 1 verse 14, it says about the glory of Christ which we are called to gain. यहाँ पे यूहन्ना पहला अध्याय उसके 4वें वचन में लिखा हुआ है मसीह के उस महिमा के विषय में जिसे हमें प्राप्त करना है. And the word became flesh, that is Jesus, and dwelt amongst us, and we beheld his glory. That means the apostles saw his glory. तो यहाँ पे लिखा है और वह देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. और हमें उसकी ऐसी महिमा देखी उसे पिता के एकलौते की महिमा. So the apostles, they saw the glory. प्रेरितों ने उस महिमा को देखा. That is the life of Jesus. वो यीशु मसीह का जीवन था, Full of grace and truth. जो कि पूरे अनुग्रह से और सच्चाई से भरा था. So I hope it is clear within us that the life that Jesus lived is the glory. और मैं समझता हूँ कि ये हमारे भी साफ हो गया हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन जिया वही महिमा है. Because the apostles only could see that, and they found that this is such a wonderful life. और सिर्फ प्रेरितों ने उसे देखा और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही अद्भुत एक जीवन है. A life of wisdom, a life of compassion, a life of love, and wholly devoted to God. और एक ऐसा जीवन जो दया से, जो प्रेम से, जो अनुग्रह से भरा हुआ हो और पूरे परमेश्वर की और भक्ति से भरा हुआ है. I mean, how he dealt with sinners, they could see. और जब वो पापियों के सामने जाते तो वो देख पाते थे वो. Not in any way that they have ever seen before. ऐसे एक तरीके से जैसे कि उन्होंने उससे पहले कभी ना देखा हो. When you think about the adulterous woman, when you think about the adulterous woman, जब आप वो व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में सोचते when हैं, you think about the woman, Samaritan woman, जो शमरिया स्त्री थी उसके बारे में जब when सोचेंगे, you think about Zacchaeus, जब जक्कई के बारे में सोचो, and so many others. और बहुत सारे ऐसे लोग. It's a different way of the different way that they saw the different life. वहाँ पे वो उनका जो नजरिया था बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने वो देखा, यीशु के जीवन को देखा. This is the life that God wants us to have. यही वो जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो. Do we desire that this life which in the worldly person cannot have? Do we desire that life? क्या हम ये एक जीवन की इच्छा रखते हैं जो कि एक सांसारिक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता? Hebrews 1:3 says, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसके 3वें वचन में कहा गया है, He is the radiance, that is Jesus is the radiance of His glory, that is God's glory, and the exact representation of His nature. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं के अपने सामर्थ के वचन से संभालता है. So brothers and sisters, the life of Jesus is that glory which we have to gain. तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही है जो महिमा है जो हमें प्राप्त करनी है. Brothers and sisters, and this is the new covenant. भाइयों बहनों, यही नई वाचा है. I hope our hearts will desire that. मैं आशा रखता हूँ कि हमारा हृदय इसकी लालसा करें. Okay, we are called to gain the glory of Christ. हमें बुलाया गया है ताकि हम मसीह की महिमा को प्राप्त करें. And it is not something which is impossible. और ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि असंभव हो. It is for each one of us from day to day that we can partake of His nature. ये हमारे हर एक जन के लिए कि एक एक दिन प्रतिदिन जो है प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसमें हम भागीदार बनते जाएं. Now, in the old covenant, there was also a glory. Sorry, brother. In the old covenant, also there was a glory, पुरानी वाचा में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक महिमा था, but it was a different glory. पर वो अलग तरीके की एक महिमा थी. When the old covenant was given on Mount Sinai, और जो पुरानी वाचा है माउंट सिनाई पे दिया गया है, we know that the reference is Exodus chapter 19 verses 5 and 6. वो लिखा गया है निर्गमन 19 उसका 5 और 6 वचन. So when it was given to Moses on the mountain,
जब वो मूसा को दिया गया था उस पहाड़ पर, Moses was there with God for 40 days. और वहाँ पे मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिनों तक था। And when Moses was with God for 40 days, और जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन तक वहाँ पे था, his face was shining. उसका मुंह जो है वो प्रकाश से भर गया। When he came down, the people could not look directly at him. जब वो नीचे उतर कर आया तो लोग उसके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाए। So there was a glory there. वहाँ पे एक महिमा थी। That's old covenant glory. वो पुरानी वाचा का महिमा है। But Moses knew that this glory, that which his face was shining, was slowly coming down. पर मूसा को ये पता था कि जो महिमा उसके चेहरे पे अब चमक रहा है वो धीरे धीरे उतरेगा। And in the New Testament it says, which is not in the Old Testament, New Testament it says Moses was putting a veil so that people would not see that the glory was going down. तो नए वाचा में, नए नियम में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि पुराने नियम में नहीं लिखा हुआ है। मूसा जो है लोगों से छिपता रहा ताकि जो महिमा उसके चेहरे से उतरती जा रही है वो लोग ना देख पाए। So we know that the glory which is there was fading. आप जानते हैं जो महिमा वहाँ पे थी वो धीरे धीरे धीमा हो रहा था, कम हो रहा था। So the old covenant glory was fading, जो पुरानी वाचा की जो महिमा है वो कम हो रहा था, whereas the new covenant glory is not fading but in fact increasing more and more. पर नई वाचा की जो महिमा है वो कम होता नहीं है पर दिन ब दिन बढ़ते जाता है। And the old covenant glory, which is some brightness or shining face, was not the glory of the new covenant. पर जो पुरानी वाचा की जो महिमा जो एक चमकदार चेहरे के रूप में दिया गया है या प्रकाश के रूप में दिया गया है वो नई वाचा की महिमा नहीं है। That means if we go to God and spend 2-3 hours in prayer, अगर हम परमेश्वर के पास जाकर मान लीजिए कि 2 या 3 घंटे प्रार्थना में बिताते हैं, and we are now in the most holy place, और हम अब सबसे पवित्र स्थान पे हैं, okay, so we're directly in the presence of God because Jesus has opened the way. और क्योंकि सीधा हम परमेश्वर के पास जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग खोल के दिया है। We will not come out from our room with a shining face. हम अपने कमरे से बाहर एक चमकदार चेहरा लेकर तो नहीं आएंगे। But if we have been with God, अगर हम परमेश्वर के साथ बिताए हैं, the glory can be imparted to our life. वो महिमा जो है हमारे जीवन में आ सकता है। In our walk with the Lord, in our walk in day-to-day life, there will be change. और हमारा ये जो रोज प्रतिदिन की जो जीवन है, जो हमारा चाल चलन है वो बदलते जाएगा। That change will take place because as we know God more and more, we will see His life. We'll have a glimpse of His life that we'll see later. जैसे ही हम प्रभु की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे बदलते जाएगा, वो जो प्रकाश है हमारे जीवन में आते जाएगा। We'll read 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे। Verse 7 it says, but if the ministry of glory, if the ministry of death in letters engraved on stones came with glory, so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face fading as it was. 1 Corinthians 3:7. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 7वां वचन, इसलिए ना तो लगाने वाला, फर्स्ट और सेकंड दे दो। Sorry. 2 Corinthians. दूसरा 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Sorry. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 7वां वचन, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। So the word of God says that ministry of death or ministry of condemnation that was called the old covenant came with glory. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो दोष की जो दोष है वो पुराने वाचा में थी, वो तेजों में ही हुई। But it says in verse 8, how shall the ministry of the Spirit, which is the new covenant, fail to be even with more glory? तो 8वें वचन में, तो आत्मा की जो वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। Okay, so brothers and sisters, what the word of God says is that old covenant had some glory, but the new covenant has got more glory. यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है भाइयों बहनों, पुरानी वाचा में थोड़ी महिमा थी परंतु नई वाचा में और ज़्यादा महिमा है। And this glory of the new covenant is so much glorious that compared to the old covenant glory, that old covenant glory cannot be said it is glory also.
और अगर हम नई वाचा की इस महिमा की तेजोमयी बातों को देखेंगे तो जब उसकी तुलना हम पुरानी वाचा के महिमा के साथ करेंगे तो वो ज्योति इसके सामने कह भी नहीं पाएंगे कि वो एक ज्योति है। So I hope it is what I'm saying is not too hard for all of you. मैं आशा रखता हूँ कि जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ आपके लिए कठिन नहीं है। I'm coming to something which can cause a transformation in our life. मैं उस बारे में आने वाला हूँ जो हमारे जीवन में जो है एक बदलाव को ला सकता है। So this glory which is of the old covenant fades, but the glory of the new covenant remains. Verse 11. और 11वें वचन में लिखा हुआ है कि जो महिमा पुराने वाचा में थी वो घटता जाता है, पर जो महिमा नए वाचा में है वो वहीं पे बना रहता है। So what happens is Moses had a veil over his face. क्या हुआ ऐसा कि मूसा के चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ था, But everybody whose heart is and minds and heart is hard, they also have a veil. और जो लोगों का मन और हृदय जो है कठोर होता है उनके ऊपर भी पर्दा डाला, वो भी पर्दे के अंदर है। When you cannot see the glory of Christ, that means there is a veil over us. जब हम आप मसीह की महिमा को देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके चेहरे के ऊपर पर्दा डाला गया है। When we cannot appreciate, brothers and sisters, that the glory of Christ is His life, when we cannot really be attracted to that, that is probably because of some veil hanging around us. तो भाइयों बहनों, जब हम इस बात को सराह नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही महिमा है और उसकी ओर हम आकर्षित नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे चेहरे पर एक पर्दा डाला गया है। And everybody who is unconverted and who is in the old covenant cannot see this glory. और जिन लोगों का परिवर्तन नहीं हुआ है, जो लोग पुराने वाचा में है, वो इस महिमा को नहीं देख पाएंगे। But all of us who have known Jesus Christ personally, और जितने लोगों ने हम में से प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना हो, it says the veil is taken away. वहाँ पे कहा गया है कि वो जो पर्दा है वो खोला गया, निकाल दिया गया है। Such a wonderful thing that the veil is not, we don't have to, the veil is taken away by God when we came to Christ. और बहुत ही अद्भुत सी एक बात है कि वो जो पर्दा है वो हटा दिया गया है, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गए हैं। And all of us will be able to see the glory of Christ. और हम में से हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की इस महिमा को देख पाएंगे। And if you desire and hunger for it, you will see more of the glory of Christ, and you will be also changed into that likeness. अगर आपके अंदर ज़्यादा भूख और प्यास और लालसा हो उस महिमा को देखने के लिए, तो आप उस महिमा को और देख पाएंगे और आपके जीवन में वो परिवर्तन लाता जाएगा। So verse 18, 2 Corinthians 3:18 should be the experience of our life. दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन जो है हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए। Because the veil has been taken away when we have come to the Lord. क्योंकि वो जो पर्दा पड़ा हुआ था जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हटा दिया गया है। It says, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. It's talking about the glory of the Lord. What is the glory of the Lord? His life. तो यहाँ पे परमेश्वर की जो महिमा है उसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर की महिमा क्या है? उसका जीवन है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, and are being transformed into that same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So we are seeing the glory as in a mirror. तो हमने उस महिमा को देखा है जैसे कि हमने एक दर्पण में देखा See, हो। when we look at the mirror, we can see ourselves clearly, right? देखिए, जब हम अपने दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो अपने आप को अच्छे से देख पाते हैं। So it says that we'll be able to see the life and nature of Jesus as in a mirror. और यहाँ पे कहा गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जो चरित्र है, जैसे कि दर्पण में देखा जाता हो वैसे देख सकते हैं। Perhaps in the day-to-day life, when the way we speak, जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में वो किस तरीके से बात करते थे। when we speak something, then there is an afterthought. Maybe Jesus would not have spoken like that. और बोलने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा एक सोच आए दिमाग में कि अगर यीशु होते तो ऐसे बात नहीं करते। And then the mirror is before us. फिर वो दर्पण हमारे सामने होता है। We see that Jesus would have spoken like this. यीशु होते तो इस प्रकार बात किए होते। Same way with our thoughts and with our actions. वैसे ही हमारे जो सोच है और हमारे जो कार्य है वो भी। We will not see some vision, some clear vision, but we will, in our spirit, we will see
the glory of Christ. हो सकता है कि एक साफ सा दर्शन हमें नहीं मिला हो, परंतु हम जो है हमारे सोच में जो है परमेश्वर के उस दर्पण को, परमेश्वर के जीवन को देख पाते हैं। It is also because why we see it, because we are hungering for becoming like Jesus and we have surrendered our life to Christ. That's why it's happening. और हम ये देख क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने जो है प्रभु की जीवन पाने के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया हो, उसके लिए बड़ी लालसा रखते हैं, इसलिए हम देख पाते Well, हैं। sisters, if these two things or the seriousness of Christ doesn't happen, then whatever we speak, we'll continue to speak like that. We will not feel we will not have the spirits nudging within us to be like Christ. देखिए भाई बहनों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ये लालसा ना हो, अगर एक इच्छा ना हो उसके समान बनने का, तो हम जैसे हैं वैसे ही बात करते जाएंगे, वैसे ही जीवन जीते जाएंगे, हमारे जीवन में एक आत्मिक उद्धार नहीं होगा। Maybe we are interested in our comforts. हो सकता है कि हमारे सुख आराम के लिए ही हम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हों। Maybe we are thinking of the future and the things that we would want to have in this world. हो सकता है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, या तो फिर इस दुनिया में कुछ चीजें हमें चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो। If that is a priority, अगर वो हमारे लिए प्राथमिकता है, then we will not be able to see in the mirror. तो फिर हम इस दर्पण में देख नहीं पाएंगे। But all those who hunger to become like Christ पर जितने भी लोग ये भूख रखते हैं कि वो प्रभु मसीह के समान बने and live a surrendered life और एक समर्पित किया हुआ जीवन जिए, will be finding it every day. तो वो उनको प्रतिदिन मिलता है। I want to find it every day how to become more like Christ. और मैं इसे प्रतिरोज जो है ढूंढता रहूंगा, पाता रहूंगा कि कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। And so for the new covenant believer, तो एक नए वाचा के विश्वासी के लिए the glory does not fade. जो महिमा है वो घटती नहीं जाती। Say you came to the Lord 10 years back, ऐसे मान लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह में 10 साल पहले आए, and now 10 years later the glory is not fading, but it is keeping on going up. पर 10 साल के बाद वो जो महिमा जो है वो घटता नहीं जा रहा पर बढ़ता जा रहा है। Okay, that is the privilege and that is the new covenant life. तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये नई वाचा की जीवन है। Okay, and we heard that God writes His laws in our hearts, and we are not adequate. God works within us. It's all a partnership of God and us. जैसे कि हमने सुना कि परमेश्वर हमारे हृदय में उनकी व्यवस्था को लिखते हैं, हम इतने योग्य नहीं है परंतु परमेश्वर हमारे लिए हमें योग्य बनाते हैं, ये सारे उसके एक भाग हैं। Now I want to leave with you two verses. अब आपके पास में 2 वचनों को छोड़ता हूँ। 2 Corinthians chapter 4 verses 10 to 3 verses. 2 Corinthians chapter 4 verses 10 to 12. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 10 से लेके 12 वचन तक। Now this verse is difficult to understand. Many people probably don't understand it properly. तो ये वचन को समझना बहुत कठिन बात है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है समझ नहीं पाते हैं इससे। But please look into your word now at this time. तो अब ये इस वचन को देखिए। Okay, and we must really allow this word to become a part of our life. और हमें इसकी अनुमति देनी होगी कि ये जो वचन है हमारे जीवन का एक भाग बन जाए। Because it's a transforming verse. ये एक परिवर्तन लाने वाला वचन है। It says, always carrying about in the body, the apostle Paul is writing, always carrying about in the body, that means his body, the dying of Jesus, that the life of Jesus, which is the glory of God, may be manifested in our body. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। Apostle Paul writing about carrying the dying of Jesus in his body. यहाँ पे प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरने के बारे में। Jesus was resurrected and later on Paul was converted. यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद जो है प्रेरित पौलुस का परिवर्तन होता है। So what is this dying of Jesus? तो यहाँ पे यीशु की मृत्यु फिर क्या है? The dying of Jesus that we have to carry is the denial of ourself in times of in our day-to-day life. तो ये यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरने का अर्थ ये होता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी स्वयं की इच्छा में हमें मरना है।
And he says, always carrying about in the body the dying of Jesus. तो यहाँ पे कहा गया है कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरना। So maybe the husband must have spoken something on which the wife does not like. हो सकता है कि पति ने कुछ ऐसी बात कर दिए हो जो पत्नी को अच्छा नहीं लगा हो, Or the wife, vice versa. या तो फिर उसका उल्टा भी हुआ हो, Or the children must have behaved some way and may have not been respectful. या तो फिर बच्चों ने किसी अलग प्रकार से बर्ताव किया हो, आदरणीय रूप से नहीं किया हो बर्ताव। When they are adults, okay? When they are adults. I'm talking about when they are adults. और वो जो बड़े हैं उनके साथ, When the children are adults, okay? When the children are adults, not when they are small. जब बच्चे जो होते हैं, जब बड़े हो जाते तब की मैं बात कर रहा When हूँ। the children are small, we have to teach them to respect. जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उन्हें सिखाना होता है कि वो आदरणीय बने सबके साथ। But when they are adults, when they pass the time, that time we will have to bear with them. अगर जब वो बड़े हो जाते हैं तो जैसे ही दिन बीतते हैं ऐसा हो सकता है कि हमें उन्हें सहना पड़े। So the dying of Jesus comes to our life daily. Opportunities are there. तो जो यीशु मसीह की जो मृत्यु है हमारे जीवन में प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में एक मौके के रूप में हमारे सामने आता In है। husband-wife relationships, एक पति पत्नी के रिश्तों में, in brothers and sisters relationship, brothers and sisters in the church, या तो फिर कलीसिया में जो भाई भाई के बीच में या तो बहन बहन के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें in all relationships, हर एक रिश्तों में we get hurt or offended. हो सकता है कि हमें चोट पहुंची हो, हम नाराज हुए किसी बात से, We feel insulted. या तो फिर हमारा अपमान हुआ हो, We feel humiliated. या तो फिर हमें नीचे दिखाया गया हो, Our flesh desires to do what our flesh wants. और हमारी शरीर की ये इच्छा होती है कि उसे जो अच्छा लगता है वो करें। And when we say, no, the flesh, you will not do what you want, but you will do what I want, that means that you will die right now. We die to our flesh. और हम कहते हैं कि शरीर तू जो चीज़ करना चाहता है वो तुझे नहीं करना होगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ तो वो तुझे करना होगा, तुझे अपने शरीर में स्वयं के लिए मरना है। That is the dying of Jesus. वही यीशु की मृत्यु है। And what it says, if we have the dying of Jesus all the time, और यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर आपके पास प्रभु यीशु की मृत्यु हमेशा रहे, what does it say? What will happen? क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा गया है? The life of Jesus, we are फिर talking यीशु about the glory of God, Yeah. gaining the glory of God. The life of Jesus will be manifested. यहाँ पे परमेश्वर की महिमा के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे द्वारा प्रकट होगा। So, brothers and sisters, this is a verse which we may feel it will be very painful and all. तो भाइयों बहनों, ये एक ऐसा वचन है जो हमें ऐसा लगेगा कि हमें ये दर्द दे रहा हो, दर्दनाक हो ये हमारे लिए। But remember, it will bring the life of Jesus. पर ये बात को याद रखिए कि ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को लाएगा। If dying of Jesus does not take place, it will bring what? Life of the flesh. अगर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे अंदर नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जो शरीर का जीवन है वो प्रकट होगा। The life of the flesh will cause more harm for us. और जो शरीर का जीवन है वो हमें ज्यादा हानि पहुंचाएगी। The relationship problems will keep on escalating. और The relationship problems will keep on escalating. जो रिश्तों में जो समस्याएं होंगी वो और बढ़ता चला जाएगा। But the life of Jesus will bring life and peace. परंतु प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो जीवन और शांति लाएगा। It may take time. और It may take time. जो समय नियुक्त किया है But उसमें, it is sure that the life of Jesus will always be so wonderful. और प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है बहुत ही अद्भुत होगा, ये बहुत ही निश्चित बात है। So, brothers and sisters, this transformation will keep on taking place from glory to glory. तो भाइयों बहनों, ये जो परिवर्तन जो है, बदलाव जो है, महिमा से महिमा की ओर जो है लेता हमें चला जाएगा। Do we want this? How many of us wants this? हम में से कितने लोग इसे पाना चाहते हैं? If we want it in our life, अगर ये हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, God is waiting to do it in our life. परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे लिए करे हमारे जीवन में। So, brothers and sisters, this is the new covenant life, which for it is a glory which keeps on transforming our lives from day to day. तो भाइयों बहनों, ये नई वाचा का जीवन, ये ऐसी एक महिमा जो हमारे जीवन में जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है। It is so interesting and so wonderful that our hearts will be always
filled with peace and joy. और ये बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत बात है कि हमारा जो हृदय है हमेशा शांति और आनंद से भरा हुआ रहेगा। Why? क्यों? Because we are always in fellowship with God. क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, Not only in a prayer time, but all throughout. सिर्फ प्रार्थना के समय में ही नहीं परंतु हर समय। My heart is filled with so much of words. मेरा हृदय जो है बहुत वचनों से भरा है। Okay, and I just sometimes pray, Lord, I did not know life was so wonderful. और कई बार मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे नहीं पता था कि जीवन जो है इतना अद्भुत और अच्छा है। I say, Lord, I did not know that you were so wonderful. और मैं ऐसा भी कहता हूँ कि प्रभु मैं ये नहीं जानता था कि आप इतने अद्भुत और अच्छे हैं। So may God help us and give us revelation. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen.